Good afternoon, students. In session of class 12th biology, chapter number 3, human reproduction. As we have proceeded towards the topic pregnancy and embryonic development. इससे पिछले वाले टॉपिक में आपने देख लिया था कि हाउ द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज how after implantation, how embryo develops in the womb of a mother. So let's have a look at the diagram and what things are modifying it, growth of the embryo, how it takes place, how maternal body helps it, how the hormone level affects it. Okay, so see, पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कि जो मदर का यूट्रस है उसमें जो एम्ब्रियो है दैट इज इम्प्लांटेड एट दिस स्टेज, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, एंड दिस इज द इनर सेल मास. ओके, इट वाज द लास्ट words of that topic that here the blastocyst will intermingle with the uterine membrane, that is implantation. After this what happens here, what happens, this outermost layer of the blastocyst, that is trophoblast, it forms some finger like projections, and these finger like projections are called chorionic villi. What are these? Chorionic villi. And these chorionic villi are surrounded by mother's tissues, that is tissues of the uterus, uterine tissues. Mother's tissues and chorionic villi. See here, chorionic villi and the tissue of uterine tissue of mother, they get interdigited like this, they get intermingled. When they get intermingled, they form a single structure, that is structural and functional unit, that is known as placenta. See here, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is placenta. Placenta कैसे बना? It is due to the formation of chorionic villi. chorionic villi कहाँ से बने? ट्रोफोब्लास्ट से. ट्रोफोब्लास्ट किसकी लेयर थी? ब्लास्टोसिस्ट की. ओके, सो chorionic villi and the tissues of uterus or uterine cavity, they intermingle, they mix together to form a single unit, that is known as placenta or placental villi. So in this diagram it is very clear that what is now placenta. Okay, so this is the connection of mother and baby. What will happen? What are the functions of this placenta and how will you define it? First of all, you will write the definition of placenta. What is placenta? वो मैंने आपको पहले बता दिया. Now, what is the function of this placenta? यहाँ पे embryo develop हो रहा है, तो इसको क्या फायदा हो रहा है embryo को मदर से? तो इसके साथ ही पूरी मदर के जो सेल्स की इसकी यॉर्क सैक है, यूट्रस की कैविटी है पूरी. सो इट इज नाउ डिवेलपिंग फिटस और डिवेलपिंग एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिटस. सो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो मदर से किसको सप्लाई होंगे? एम्ब्रियो को, और डिवेलपिंग एम्ब्रियो यू कैन कॉल इट एज. नंबर 1, सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, वो सारा वहां से लेगा. नंबर 2, removal of harmful objects or products, that is carbon dioxide and excretory waste, all will be released through this placenta. Third, placenta के थ्रू ही उसको जो बाकी वाले substances हैं, useful substances, वो भी मिल जाएंगे. And the most important point here is to write placenta act as endocrine. endocrine tissue की तरह काम करेगा. एंड कौन कौन से हॉर्मोन्स ये देगा, वो हार्मोन के नाम आपको याद करने हैं. दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. ये हार्मोन तो है ही हैं. इसके बाद जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेजेस आएंगी उस टाइम पे रिलैक्सिन रिलीज होगा, दैट विल हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द
child. Okay, so the hormones once again: HCG, human chorionic gonadotrophin; HPL, human placental lactogen; estrogen and progesterone, and at the last there will be relaxin. इसके अलावा कुछ और हॉर्मोन्स भी हैं जैसे थायरोक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन. दे विल ऑल इंक्रीज इन दिस मेटरनल ब्लड. पूरे जो इंक्रीज हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. सो द लेवल ऑफ दीज हॉर्मोन्स विल इंक्रीज. तो ये हार्मोन इंक्रीज होने का क्या फायदा हुआ? इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो टू द फीटस. नंबर 2, ये हॉर्मोन्स जो मदर की मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं वो भी इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं. तो एम्ब्रियो को दो चीज़ें, जो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसको मदर से मिल रहे हैं. नंबर 1 द रोल ऑफ हॉर्मोन्स, नंबर 2 द मेटाबॉलिक कंडीशंस और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द मदर. द ऑल विल हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. ओके, सो नाउ अब जब ये फीटस बनेगा तो आपको पता है कि 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी टाइम होगा और उसमें क्या क्या होगा, ये पहले एम्ब्रियो जो है डिफ्रेंशिएट करेगा. तो हमें ये पता है कि ये जो यहाँ पे अगर आप फोकस करें इनर सेल मास, तो लेट्स फोकस हियर, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी. और ये जो इनर सेल मास था इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टेम सेल्स. These are the cells which has the highest potency to differentiate. अब ये डिफ्रेंशिएट करके 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होगा. आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर. आउटर जो है दैट विल फॉर्म एक्टोडर्म, इनर विल फॉर्म एंडोडर्म एंड मिडल वन विल फॉर्म मेसोडर्म. अगेन फोकस हियर so that you can understand how this fetus is going to develop. Again further, outer ectoderm, endoderm and mesoderm. So ये सारा किसकी वजह से हुआ? That was due to the inner cell mass. Okay, so वही इसके ऑर्गन्स बनाने को डिसाइड करेगा कि कौन से ऑर्गन किस लेयर से बनेंगे. ओके, सो जब पहला मंथ खत्म होगा प्रेगनेंसी का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मंथ, देन हार्ट इज फॉर्म्ड. तो सबसे पहले डॉक्टर प्रेगनेंसी को जब चेक करता है तो वो स्टेथोस्कोप से अगर उसको हार्ट साउंड सुनाई देती है, मीन्स देयर इज लिविंग फीटस इन द वॉर्म ऑफ अ फीमेल बॉडी. ओके, सो पहला सिम्टम तो वो हो जाता है, पहला साइन वो हो जाता है प्रेगनेंसी का. और दूसरा उसके बाद जब सेकेंड मंथ कंप्लीट होने पे आता है, देन सेकेंड मंथ जब कंप्लीट होता है उसके लिम्स बन जाते हैं, उसके डिजिट्स बन जाती हैं. लिम्स और ये सारे उसके बाजू और ये आगे डिजिट्स, फिंगर्स वगैरह, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. एंड एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, तो जो थर्ड मंथ का टाइम है, थर्ड मंथ के लास्ट में जाके उसके ऑर्गन सिस्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पता चलने शुरू हो जाएंगे, लिम्स बन जाएंगे कम्प्लीटली. जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब जेनिटेलिया एक्सटर्नल बन जाते हैं तो सम पीपल मिस यूज इट फॉर द एमनियोसेंटेसिस, दैट इज कि वो पता लगा लेते हैं कि फीमेल बेबी है या मेल बेबी है. सो दैट इज बैंड बाय आवर गवर्नमेंट नाउ, and because it was not for that purpose, you will study about it in next chapter also. So तो थर्ड मंथ के लास्ट में जाके एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएंगे. उसके बाद जब इसका नेक्स्ट डेवलपमेंट ऐसे होती है तो फिफ्थ मंथ के लास्ट तक जाते जाते जब फर्स्ट 3 मंथ होते हैं तो इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल देते हैं. सो 9 मंथ्स पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर 1, 2 एंड 3. तो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में कि फर्स्ट मंथ बोल सकते हो या फिफ्थ मंथ बोल सकते हो. उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ मंथ में, फोर्थ में पूरा कंप्लीट जेनिटेलिया बन जाते हैं. या फिर आप वीक्स के हिसाब से भी लिख सकते हो. जैसे थर्ड मंथ है तो मीन्स कितने वीक हो गए? 12 वीक्स. तो थर्ड वीक की आप प्रेगनेंसी को 12 वीक भी लिख सकते हो. ओके, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमेस्टर्स, in the months as well as in weeks and even in counting of the days also. Okay, so fifth month में जाके उसकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी हेड के ऊपर. ओनली हेड के ऊपर हेयर ग्रोथ, तो बच्चा जो थोड़ा सा जो फिटस है वो मूव करना शुरू कर देता है. ओके, 6 मंथ्स में उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर आ जाएंगे. उसकी आईलेट्स, आईलैशेस, ये सारे आईलिड्स उसके ओपन होंगे, आईलैशेस उसके बन जाएंगे. और ऐसे करते जब और डेवलपमेंट होती है तो एट द लास्ट नाउ इट्स जस्ट फॉर द ग्रोथ. बाकी वाले जो मंथ्स हैं उसमें नए ऑर्गन्स कुछ नहीं बनेंगे, जस्ट देयर विल बी द ग्रोथ और हेल्दी ग्रोथ ऑफ द फिटस एज पर द न्यूट्रिशन ऑफ मदर
and now the baby will be ready for delivery, and that delivery is known as parturition, and that is your next topic, parturition and lactation. So I hope this pregnancy and embryonic development, this topic will be very clear to you people now. See the diagram, प्लेसेंटा कैसे, आपने प्लेसेंटल विलाई कैसे बनाने हैं, फीटस कहाँ बनाना है, ठीक है, आसपास उसके यूट्राइन मेम्ब्रेन दिखानी है, और सर्विक्स में प्लग ऑफ म्यूकस ऑटोमेटिकली बन जाता है, और कैविटी ऑफ यूट्रस को आपने पूरा इसको कवर करके जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो यूट्राइन कैविटी जो है दैट इंक्रीजेस इन साइज. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रोल क्या है, स्पेशली प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह कैसे काम करता है, उसमें HPL का क्या रोल है, HCG का क्या रोल है. ओके, तो उसके प्लेसेंटा के आपको फंक्शंस लिखने हैं. फिर वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या आईलैशेस कब बनेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीटस के कब बनेंगे, एंड उसका जो हार्ट किस मंथ में बनता है या किस वीक में बनता है. तो किसी तरह का भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा. स्टेम सेल्स का क्या रोल है यहाँ पे, स्टेम सेल्स या इनर सेल मास का क्या रोल है, तो वही आपने लिखना. उसमें पोटेंसी होती है ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, उससे डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं उसके फीटस के. ओके, सो प्लेसेंटा, रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2 एंड ट्राइमेस्टर 3 जो है आपने इसको कम्प्लीटली अच्छे से, छोटा सा टॉपिक है बट इट हैज मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, एंड इन विच ट्राइमेस्टर विच ऑर्गन इज फॉर्मिंग and how the fetus development takes place. Okay, I hope this topic will be very clear to you people. Okay, thank you and have a nice day.